Chapter 1 Patterns in Mathematics from Class 6 Subject Mathematics Book गणित प्रकाश अध्याय 1 गणित में पैटर्न्स 1.1 What is Mathematics 1.1 गणित क्या है Mathematics is in large part the search for patterns and for the explanations as to why those patterns exist. गणित बड़े पैमाने पर पैटर्न की खोज और उन पैटर्नों के अस्तित्व के कारणों की व्याख्या है Such patterns indeed exist all around us, in nature, in our homes and schools, and in the motion of the sun, moon and stars. ऐसे पैटर्न वास्तव में हमारे चारों ओर मौजूद हैं प्रकृति में हमारे घरों और स्कूलों में और सूर्य चंद्रमा और तारों की गति में They occur in everything that we do and see, from shopping and cooking to throwing a ball and playing games to understanding weather patterns and using technology. ये पैटर्न हमारे हर कार्य और देखने में होते हैं जैसे कि खरीदारी और खाना बनाना गेंद फेंकना और खेल खेलना मौसम के पैटर्न को समझना और तकनीक का उपयोग करना The search for patterns and their explanations can be fun and creative endeavor. पैटर्न और उनके स्पष्टीकरण की खोज एक मज़ेदार और रचनात्मक प्रयास हो सकता है It is for this reason that mathematicians think of mathematics both as an art and as a science. इस कारण से गणितज्ञ गणित को कला और विज्ञान दोनों के रूप में मानते हैं This year we hope that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns. इस वर्ष हम आशा करते हैं कि आपको गणितीय पैटर्नों की खोज और समझ में रचनात्मकता और कला का आनंद लेने का मौका मिलेगा It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what patterns exist, but also the explanations for why they exist. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि गणित का उद्देश्य न केवल यह जानना है कि कौन से पैटर्न मौजूद हैं, बल्कि यह भी कि वे क्यों मौजूद हैं Such explanations can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered, which can then help to propel humanity forward. ऐसे स्पष्टीकरण अक्सर उस संदर्भ से परे अनुप्रयोगों में उपयोग किए जा सकते हैं जिनमें वे खोजे गए थे जो फिर मानवता को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं For example, the understanding of patterns in the motion of stars, planets and their satellites led humankind to develop the theory of gravitation, allowing us to launch our own satellites and send rockets to the moon and to Mars. Similarly, understanding patterns in genomes has helped in diagnosing and curing diseases, among thousands of other such examples. उदाहरण के लिए तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों की गति में पैटर्न को समझने से मानव जाति ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को विकसित किया है जिससे हमें अपने उपग्रहों को लॉन्च करने और चंद्रमा और मंगल तक रॉकेट भेजने की अनुमति मिली इसी तरह जीनोम में पैटर्न को समझने से बीमारियों का निदान और इलाज करने में मदद मिली है हजारों अन्य ऐसे उदाहरणों में फिगर इट आउट खोज निकालना क्वेश्चन 1 Can you think of other examples where mathematics help us in our everyday lives? क्या आप अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जहां गणित हमारे दैनिक जीवन में मदद करता है आंसर Mathematics helps us in many ways every day. For example, shopping. When we buy things, we use math to count money, calculate discounts and know how much change to get back. Cooking. We use math to measure ingredients and follow recipes. If we need to double a recipe, we use multiplication to figure out the right amounts. Telling time, we use math to read clocks and manage our daily schedules. Traveling, math helps us calculate distances, speed and the time it will take to reach a place. Playing games, many games involve counting, keeping score and strategy, all of which use math. Building things, whether it's assembling a toy or building a house, math is used to measure and fit things together properly. Question 2. How has mathematics helped propel humanity forward? गणित ने मानवता को कैसे आगे बढ़ाने में मदद की है You might think of examples involving carrying out scientific experiments, running our economy and democracy,
building bridges, houses, or other complex structures, making TVs, mobile phones, computers, bicycles, trains, cars, planes, calendars, clocks, etc. आप इन उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग करना, हमारी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र चलाना, पुल, घर या अन्य जटिल संरचनाएं बनाना, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, साइकिल, ट्रेन, कार, विमान, कैलेंडर, घड़ी आदि बनाना। आंसर: मैथमेटिक्स हैज प्लेड अ ह्यूज रोल इन हेल्पिंग ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस एंड अचीव अमेजिंग थिंग्स। Here are some examples. Scientific experiments. Scientists use math to calculate and analyze data from experiments. This helps them discover new medicines, understand the universe, and solve important problems. Building bridges, houses, and complex structures. Engineers and architects use math to design and build safe and strong bridges, houses, and skyscrapers. Without math, these structures wouldn't be as reliable. Economy and democracy. Math is used to manage money in banks, businesses, and governments. It helps in making budgets, calculating taxes, and running elections smoothly by counting votes. Technology. Math is the foundation of all technology we use today, like TVs, mobile phones, computers, and even airplanes and trains. It helps in designing, coding, and creating these devices. Calendars and clocks. Math is used to create calendars and clocks which help us keep track of time, plan our days, and organize events. Thanks to math, we have been able to invent, build, and improve many things that make our lives easier and the world a better place. 1.2 Patterns in numbers. 1.2 संख्याओं में पैटर्न. Among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of numbers, particularly patterns of whole numbers 0, 1, 2, 3, 4 and so on. गणित में होने वाले सबसे बुनियादी पैटर्नों में से एक संख्या के पैटर्न हैं, विशेष रूप से होल नंबर्स के पैटर्न्स 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे. The branch of mathematics that studies patterns in whole numbers is called number theory. गणित की वह शाखा जो होल नंबर में पैटर्नों का अध्ययन करती है उसे नंबर थ्योरी कहा जाता है. नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियंस स्टडी. नंबर सीक्वेंस गणितज्ञों द्वारा अध्ययन किए जाने वाले सबसे बुनियादी और सबसे दिलचस्प प्रकार के पैटर्नों में से हैं. Table 1 shows some key number sequences that are studied in mathematics. तालिका 1 गणित में अध्ययन किए जाने वाले कुछ प्रमुख संख्या अनुक्रमों को दिखाता है, यानी कि की नंबर सीक्वेंस. टेबल 1 एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंसेस 1 1 1 1 1 1 so all ones. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 so ये हैं काउंटिंग नंबर्स. नेक्स्ट 1 3 5 7 9 11 13 सो ये हैं ऑड नंबर्स. 2 4 6 8 10 12 14 सो ये सभी नंबर्स हैं इवन नंबर्स. नेक्स्ट 1 3 6 10 15 21 28 सो ये सभी हैं ट्रायंगुलर नंबर्स. नेक्स्ट 1 4 9 16 25 36 49 सो ये सभी हैं स्क्वायर्स. 1 8 27 64 125 216 सो ये सभी नंबर्स हैं क्यूब्स. नेक्स्ट 1 2 3 5 8 13 21 ये सभी हैं विरहन नंबर्स. नेक्स्ट 1 2 4 8 16 32 64 सो ये सभी हैं पावर ऑफ 2. नेक्स्ट 1 3 9 27 81 243 729 सो ये सभी हैं पावर ऑफ 3. फिगर इट आउट. खोज निकालना. क्वेश्चन 1 कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1. क्या आप टेबल 1 में दिए गए प्रत्येक सीक्वेंस में पैटर्न को पहचान सकते हैं? यस. आइए देखते हैं आंसर. तो दोस्तों पहले में कुछ नहीं है, सारे 1 1 1 के हैं. सेकंड में आप देखोगे तो काउंटिंग नंबर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ +1 हो रहा है इस सीरीज में, सिर्फ +1. उसके बाद नेक्स्ट सीरीज हम देखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 तो ये सभी ऑड नंबर हैं. तो 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 15.
नेक्स्ट हमारे इवन नंबर्स के सीक्वेंस हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इसके बाद क्या आएगा 16। नेक्स्ट 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, तो ये सभी ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है +2 और यहाँ पे क्या हो रहा है +3 और यहाँ पे हो रहा है +4 और यहाँ पे हो रहा है +5। तो सिमिलरली ऐसे ही +6, +7, यहाँ पे आएगा +8, तो इसके बाद आएगा 36। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर्स। तो बेसिकली हमारे स्क्वायर्स हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, देन 6 का, देन 7, फिर नेक्स्ट आएगा 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर होता है 64। उसके बाद है हमारे क्यूब्स का सीक्वेंस। तो पहले ये 1 का क्यूब है, देन 2 का, देन 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, देन नेक्स्ट आएगा 7 का क्यूब जो हमें पता है होता है 343। तो दोस्तों विरनका नंबर्स में क्या होता है कि जो प्रीवियस दो नंबर्स होते हैं उन्हें हम ऐड करते हैं। 1 + 2 3, देन 2 + 3 5, देन 3 + 5 8, देन 5 + 8 13, देन 8 + 13 21 और यहाँ पे आएगा 13 + 21, तो आंसर हुआ 34। नेक्स्ट पावर ऑफ 2। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 की पावर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं जैसे 2 की पावर 0, देन नेक्स्ट नंबर होगा 2 की पावर 1, देन नेक्स्ट का नंबर होगा 2 की पावर 2, देन नेक्स्ट नंबर 2 की पावर 3। तो जो पावर है वो शुरू हो रही है 0 1 2 3। तो हमें पता है 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 हो गया 2, 2 की पावर हो गया 2 4, 2 की पावर 3 हो गया 8। तो इसी प्रकार ये सीरीज आगे चल रही है। ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और यहाँ पे आएगा 2 की पावर 7 और आंसर क्या होगा वो 128। सो ये आंसर आएगा 64 के बाद 128। और सिमिलरली यहाँ नीचे है पावर ऑफ 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 0 आएगा हमारा 1, 3 की पावर 1 3, देन 9, देन 27 और सिमिलरली 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6 और यहाँ पे आएगा 3 की पावर 7, 2187। तो दोस्तों ये सारी सीरीज के पैटर्न्स हैं जैसे मैंने अभी आपको सारा बताया। Question 2. Rewrite each sequence of table 1 in your notebook along with the next three numbers in each sequence. After each sequence, write in your own words what is the rule for forming the numbers in the sequence. तालिका एक के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में फिर से लिखें। साथ ही प्रत्येक अनुक्रम में अगले 3 संख्याओं को जोड़ें। प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में लिखें कि अनुक्रम में संख्याओं को बनाने का नियम क्या है। आंसर। तो दोस्तों जैसा हमने ऑलरेडी अभी ये सारे पढ़े हैं, तो अब हमें बताना है कि आगे के 3 नंबर कौन से होंगे, तो हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट 3 नंबर आएंगे 1, देन 1, देन 1, बिकॉज यहाँ पे सारे 1 1 1 ऑल वंस हैं। देन नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर्स। तो 7 के बाद आएगा 8, देन 9, देन 10। उसके बाद ऑड नंबर्स हमें लिखने हैं। तो 13 के बाद आएगा 15, देन 17 एंड देन 19। उसके बाद हमें इवन नंबर्स लिखने हैं। तो 10, 12, 14, देन 16, देन 18 एंड देन 20। उसके बाद हमें ट्रायंगुलर नंबर्स लिखने हैं। सो ट्रायंगुलर नंबर्स में हमने देखा था कि यहाँ पे हो रहा है +2, +3, +4, +5। तो यहाँ पे होगा +8। तो 28 के बाद आएगा 36, देन 36 में प्लस होगा 9 तो आएगा 45 और 45 में प्लस होगा 10 नेक्स्ट तो आएगा 55। तो ये आंसर है। उसके बाद है स्क्वायर। तो यहाँ पे चल रहा था 1 का, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, देन 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 एंड देन 10 का स्क्वायर 100। तो दोस्तों आपको ये स्क्वायर्स याद होने चाहिए ताकि आपको पेपर में सॉल्विंग के टाइम आसानी रहे। देन उसके बाद आता है हमारा क्यूब्स। तो यहाँ पे था 1 का क्यूब, 2 का, 3, 4, 5, 6, देन 7 का आएगा 343, देन 8 का आएगा 512 एंड देन 9 का 729। उसके बाद वीरान का नंबर्स। इसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रीवियस के 2 नंबर्स हैं उनका एडिशन होता है। जैसे यहाँ पे 2 + 1 3, देन 3 + 2 5,
सो सिमिलरली जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 13 + 21, तो आंसर आएगा 34। द नेक्स्ट नंबर होगा 34 + 21, वो होगा 55। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा 34 + 55, तो वो आएगा हमारा 89। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था पावर्स ऑफ 2। सो पावर्स ऑफ 2 में क्या हो रहा है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सिमिलरली 2 की पावर 3, 4, 5, 6, यहाँ 2 की पावर 7, तो वो आएगा 128। देन 2 की पावर 9, 256, देन 2 की पावर 10, सो आंसर 512। देन नेक्स्ट है पावर ऑफ 3। सो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, देन 3 की पावर 7, तो वो आएगा 2187। तो ये थोड़ा लंबा नंबर हो जाएगा, तो थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ। देन इसके बाद आएगा 3 की पावर 8, सो 6561, एंड नेक्स्ट 3 की पावर 10, 19683। तो दोस्तों ये है आंसर हमारे आगे के 3 नंबर। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इनमें पैटर्न क्या है सारे सीक्वेंस में, तो आप वो नोट कर लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। तो दोस्तों हमारे ये 2 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे 1.3 पे। 1.3 विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। 1.3 नंबर सीक्वेंसेस का चित्रण। मैनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज यूजिंग पिक्चर्स। कई नंबर सीक्वेंसेस को चित्रों का उपयोग करके चित्रित किया जा सकता है। Visualizing mathematical objects through pictures or diagrams can be a very fruitful way to understand mathematical patterns and concepts. चित्रों या आरेखों के माध्यम से गणितीय वस्तुओं का चित्रण करना गणितीय पैटर्नों और अवधारणाओं को समझने का एक बहुत ही फलदायक तरीका हो सकता है। Let us represent the first 7 sequences in table 1 using the following pictures. आइए तालिका 1 में पहले 7 अनुक्रमों का चित्रण निम्नलिखित चित्रों का उपयोग करके करते हैं। टेबल 2 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंसेस। तालिका 2 में कुछ संख्या अनुक्रमों का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों जैसे आप जानते हो अभी हमने पढ़ा है टेबल 1, सो ये उसी का है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि ऑल वंस। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, ग्रीन बिंदु जैसा आपको दिख रहा है हर जगह, जैसे 1 1 1 1 1। देन नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर्स। सो काउंटिंग नंबर्स में हमने पढ़ा था 1 2 3 4 5। तो सिमिलरली 1 के लिए 1 पॉइंट, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 पॉइंट्स, 5 के लिए 5 पॉइंट्स। देन ऑड नंबर्स। सो ऑड नंबर्स हमने पढ़े थे 1 3 5 7 9। तो उसी प्रकार जितने हमारे नंबर्स हैं उतने हमने यहाँ पे ब्लू सर्कल्स बना दिए हैं। 1 के लिए 1, 3 के लिए 3, 5 के लिए 5, एंड सिमिलरली आगे। देन नेक्स्ट है इवन नंबर्स। और इवन नंबर्स भी हमने पढ़े थे 2 4 6 8 10। सो इनको रिप्रेजेंट करते हुए हमने ग्रीन सर्कल्स बना दिए हैं, 2 के लिए 2, 4 के लिए 4, 6 के लिए 6, एंड सिमिलरली 8 एंड 10। देन ट्रायंगुलर नंबर्स। सो ट्रायंगुलर नंबर्स में आप पैटर्न देख सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। 1 के लिए 1 है, 3 के लिए ये एक ट्रायंगल की तरह बनाया गया है, और सिमिलरली 6 के लिए भी एक ट्रायंगल की तरह बनाया गया है और उसमें सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं। देन 10 एंड देन 15। नेक्स्ट आप देख सकते हो स्क्वायर्स। सो स्क्वायर्स में 1 के लिए 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे स्क्वायर बना दिया है जैसा कि आपको दिख रहा है, और देन 9, देन 4 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर। देन लास्ट है हमारा क्यूब्स। और क्यूब्स आप देख सकते हो 1 का क्यूब, देन 2 का क्यूब, देन 3 का, 4 एंड 5। तो अगर आपको ये बनाना है तो आप देख सकते हो, अगर 2 का क्यूब है तो यहाँ पे 1 और 2 बॉक्सेस हैं। 3 का क्यूब है तो 1 2 3, और नीचे जाएंगे तो 1 2 3, मतलब 3/3। और उसी प्रकार 64 का आप देखोगे 1 2 3 4, और नीचे जाएंगे तो 1 2 3 4, तो 4/4, तो 4 का क्यूब। फिगर इट आउट। क्वेश्चन 1, copy the pictorial representations of the number sequences in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence. तालिका 2 में संख्या अनुक्रमों के चित्रात्मक प्रतिनिधित्वों को अपनी नोटबुक में कॉपी करें और प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाएं।
तो दोस्तों जो टेबल 2 के हैं वो आप अपनी नोटबुक में बना लेना, उसके आगे के जो सीक्वेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके आगे आएगा नेक्स्ट एक, क्योंकि सारे वंस हैं तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन सर्कल बना लेना है और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 1। देन नेक्स्ट है हमारा काउंटिंग नंबर्स। तो यहाँ पे था 4 5, तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे हमें 6 सर्कल बना लेने हैं रेड। 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे हमने 6 बना लिए। देन नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर्स। तो 1 3 5 7 9 और यहाँ पे आएगा 11, तो हम यहाँ पे 11 ब्लू सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और नीचे लिख देते हैं 11। तो आप भी ऐसे ही आगे ड्रॉ कर लेना। उसके बाद आता है हमारा इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 10, तो इसके बाद आएगा 12, तो यहाँ पे हम ग्रीन सर्कल बना लेते हैं 12। तो यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे हमने लिख लिया आगे 12। देन नेक्स्ट है हमारे ट्राइंगुलर। 1 3 6 10 15। जैसे आप देखोगे बेस में, तो अगर ये 1 है तो सिर्फ 1, ये 2 आप मान के चलो ये सेकंड फिगर है तो यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं, ये थर्ड आप मान के चलो थर्ड फिगर है तो 3 सर्कल हैं, तो 4 5 6। तो हमें क्या करना है बेसिकली, पहले हमें बना लेने हैं 6 सर्कल्स नीचे बेस में। सो 1 2 3 4 5 6, फिर मिडल में आप बनाते चलिए 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 1 2 3 1 2 देन 1 लास्ट में। तो ऐसे हमारा बन जाएगा नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न। और इसमें हमारे कितने हैं 21। सो यहाँ पे हमारे हो गए 21। देन नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा हमारा 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर होता है 36। और हम क्या करेंगे, यहाँ हम नीचे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ नीचे भी 1 2 3 4 5 6। और ऐसे अब हम बीच में बनाते चलेंगे। पहले 6 थे जैसे आप इस पैटर्न में देखोगे, तो 1 2 3 4 5, फिर अंदर कितने 1 2 3, तो हमें कुछ नहीं करना, बस इन यहाँ पे हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए 36। तो आप ये ड्रॉ कर लेना, मैं थोड़ा रफली आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा क्यूब। और क्यूब में आप देख सकते हो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब, तो यहाँ आएगा 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब हमें पता होता है कितना है 216। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको इस फिगर को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि यहाँ पे हम बॉक्स कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हम एक क्यूब बना लेते हैं। एक हमारा ये रहा क्यूब, ये भी मैं रफली बना रहा हूँ आपके लिए। तो हमें 6 का है तो हमें अंदर 5 लाइनें और बनानी है, 1 2 3 4 5, और सिमिलरली 1 2 3 4 5। क्योंकि मैंने 6 का बनाया तो अंदर 5 लाइनें बनाई हैं, और यहाँ पे भी अंदर मैंने हॉरिजॉन्टल 5 लाइंस ड्रॉ करी हैं। और एक और फिर अब हम एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, और एक यहाँ ले लेते हैं, और इनको कर लेते हैं जॉइन। तो जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है वैसा आप यहाँ ड्रॉ कर देना और यहाँ ड्रॉ कर देना, और टोटल ये आपके बन जाएंगे 216, 6 का क्यूब। क्वेश्चन 2, वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स, वाई आर 1 4 9 16 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स, वाई आर 1 8 27 64 125 कॉल्ड क्यूब्स।
आंसर, तो दोस्तों जैसा आपको दिख रहा होगा फिगर में, तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं और इन्हें हम ट्रायंगुलर नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इन्हें एक पैटर्न में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ट्रायंगल की शेप लेते हैं। ये है ना, ये एक ट्रायंगल की शेप, और ऐसे ये भी एक ट्रायंगल की शेप है, ये भी एक ट्रायंगल की शेप है, तो इस वजह से इन्हें कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर्स। तो जब हम स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स में तो आप देख सकते हो ये बनाते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर कैसे बनता है हमारा, ऐसे। और आप जानते हो स्क्वायर्स में सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये स्क्वायर की तरह हमारा ड्रॉ होता है। उसी प्रकार ये भी सारा स्क्वायर की तरह, ये भी और ये भी। देन नेक्स्ट है हमारा क्यूब। तो क्यूब भी आप देख सकते हो, क्यूब आपने देखा होगा, रूबिक्स क्यूब आपने देखा होगा, आप खेलते भी होगे उससे, तो वो इसी प्रकार का दिखता है क्यूब, तो इस वजह से इसको हमने कहा है क्यूब। तो आप इनका भी देख सकते हो पैटर्न सबका क्यूब की तरह ये दिखता है, तो इसलिए इनको कहा गया है क्यूब, इसे कहा गया है स्क्वायर और इसे कहा गया है ट्रायंगुलर नंबर्स। Question 3. You will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. That is, 36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and in a square. Make pictures in your notebook illustrating this. So friends, आपको pictures बनानी है तो ये आप खुद ड्रॉ कीजिएगा नोटबुक में। What would you call the following sequence of numbers? 1, 7, 19, 37. सो फ्रेंड्स, इसको हम कहेंगे हेक्सागोनल नंबर्स। दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? आंसर, तो दोस्तों जैसा हमें पता, हमें हेक्सागन नंबर पहले दिया हुआ था 1, देन 7 और देन 19 और फिर 37। तो इसका पैटर्न फाइंड आउट करते हैं हम, तो देखते हैं कि इसमें कितना डिफरेंस है। आप देखोगे 6 का डिफरेंस है, और इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 12 का, और इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 18 का। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 का टेबल स्टार्ट हो गया, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, देन आएगा 6 इंटू 4 24, तो यहाँ पे आएगा प्लस 24। तो 36 में हम 24 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 60। तो दोस्तों इसका 60 का हम पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं अब। तो हमें कुछ नहीं करना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि ये 5th नंबर है सीरीज़ का। देन 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ से भी इसको मिला के 1, 2, 3, 4, 5, देन इसको मिला के 1, 2, 3, 4, 5, इसको मिला के 1, 2, 3, 4, 5, देन इस इंक्लूड करके 1, 2, 3, 4, 5। तो ये थोड़ा आउट ऑफ शेप हो रहा है, तो आप इसको करेक्ट बना लेना, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है। क्वेश्चन 5. कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 3? Here is one possible way of thinking about powers of 2. Powers of 2, so 2 की power 0 1, 2 की power 1 2, 2 की power 2 4, 2 की power 3 8, 2 की power 4 16. 1.4 Relations among number sequences. 1.4 नंबर सीक्वेंसेस के बीच संबंध। Sometimes number sequences can be related to each other in surprising ways. कभी कभी नंबर सीक्वेंसेस अप्रत्याशित तरीकों से एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स? उदाहरण, क्या होता है जब हम ऑड संख्याओं को जोड़ना शुरू करते हैं? लेट्स सी, 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 16, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 is equal to 25. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 is equal to 36. This is a really beautiful pattern. यह एक बहुत ही सुंदर पैटर्न है। Why does this happen? Do you think it will happen forever? यह क्यों होता है? क्या आपको लगता है कि यह हमेशा के लिए होता रहेगा? The answer is that the pattern does happen forever. उत्तर यह है कि यह पैटर्न हमेशा के लिए होता है। बट वाई, लेकिन क्यों?
As mentioned earlier, the reason why the pattern happens is just as important and exciting as the pattern itself. जैसा कि पहले कहा गया था, पैटर्न के होने का कारण खुद पैटर्न जितना ही महत्वपूर्ण और रोमांचक है। A picture can explain it. एक चित्र इसे समझा सकता है। Visualizing with a picture can help explain the phenomenon. चित्र का उपयोग करके चित्रण करना इस घटना को समझाने में मदद कर सकता है। Recall that the square numbers are made by counting the number of dots in a square grid. याद रखें कि इवन संख्या एक वर्ग ग्रिड में बिंदुओं की संख्या गिनने से बनती है। How can we partition the dots in a square grid into odd numbers of dots 1, 3, 5, 7? हम वर्ग ग्रिड में बिंदुओं को कैसे विभाजित कर सकते हैं ताकि ऑड संख्याएं प्राप्त हों 1, 3, 5, 7। थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट बिफोर रीडिंग फर्दर। आगे पढ़ने से पहले इस पर सोचें। Here is how it can be done. जैसा कि आप देख सकते हो 1, then 3, then 5, then 7, then 9, and then 11. This picture now makes it evident that 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 is equal to 36. अब यह चित्र स्पष्ट कर देता है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 होता है 36. Because such a picture can be made for a square of any size, this explains why adding up odd numbers gives square numbers. क्योंकि इस प्रकार का चित्र किसी भी आकार के वर्ग के लिए बनाया जा सकता है, यह बताता है कि ऑड संख्याओं को जोड़ने से इवन संख्या क्यों बनती है। By drawing a similar picture, can you say what is the sum of the first 10 odd numbers? Answer. तो दोस्तों इसमें हम आगे का सीक्वेंस बना लेते हैं। अभी यहाँ तक मैंने 1, 3, 5, 7, 9, 11 तक के बना रखे हैं। अब हमें बनाना है आगे के 10 ऑड नंबर्स। तो उसके लिए ये मैंने फिगर पहले से बना लिया है, आगे का आप ड्रॉ कर लेते हैं। एक मैं यहाँ बना देता हूँ 1, 2, 3, और बाकी का यूँ बना देते हैं। तो ये हमारे बन गए रेड लाइन से। इसके बाद हम इसमें पॉइंट बना देते हैं। तो दोस्तों ये मैंने पूरे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। थोड़ा आप इन्हें नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो फिगर तो हमारा ये बनेगा। उसके बाद हम सम का देख लेते हैं कि सम कितना होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने ऑलरेडी ये लिख दिया है। 1 है हमारी फर्स्ट टर्म, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। सो यहाँ पे टोटल टर्म्स हैं 10। तो इसका सम होगा 100। सो इसका मैं एक फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको n टर्म्स दे दी हूँ, n टर्म्स का मतलब है मान लीजिए ये 10 है, इसको n मान लो, 10 टर्म्स का आपको सम बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी है सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। मतलब जो भी आपको दे रखी है, जितनी टर्म्स का आपको सम निकालना है उसका आप स्क्वायर कर दो। जैसे मान लो हमें 10 का निकालना था, तो 10 का स्क्वायर वो हो गया 100। मान लीजिए आपको 8 टर्म्स का निकालना होता, ऑड टर्म्स का, तो हम कर देते सम ऑफ 8 ऑड नंबर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। सो ये आ जाता 64। सो ये सम होता। सो ये फॉर्मूला है। सो अगर आपको वर्बली निकालना हो तो ये उसके लिए है। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उस पर चलते हैं। नाउ बाय इमेजिनिंग अ सिमिलर पिक्चर और बाय ड्राइंग इट पार्शियली, कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स? आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 100 ऑड नंबर्स का सम निकालना है, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया, सम ऑफ 100 odd numbers is equal to 100 का स्क्वायर।
सो आंसर क्या आएगा हमारा 10,000। सो ये सम है हमारा फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को आप बस याद कर लेना कि जितनी आपसे टर्म्स पूछी जाएं उसका आप स्क्वायर कर दो तो आपका सम निकल आएगा, आपको इतना बड़ा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं आगे चैप्टर में। Another example of such a relation between sequences adding up and down। ऐसा ही एक और उदाहरण ऊपर और नीचे जोड़ना। Let us look at the following pattern। 1 1 plus 2 plus 1 4, 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 9, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 16, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 25, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 36। This seems to be giving yet another way of getting the square numbers by adding the counting numbers up and then down। जैसा कि आप देखोगे पहले तो हमने एक फिर दो फिर वापसी एक पे गए, इनको ऐसे जोड़ा। अगले में एक दो तीन फिर वापसी गए एक तक, दो और एक। 1.5 पैटर्न्स इन शेप्स, 1.5 आकृतियों में। अदर इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स दैट अगर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप्स। गणित में होने वाले अन्य महत्वपूर्ण और बुनियादी पैटर्न आकृतियों के पैटर्न होते हैं। These shapes may be in 1, 2 or 3 dimensions, 1D, 2D और 3D, और in even more dimensions। ये आकृतियाँ 1, 2 या 3 आयामों 1D, 2D या 3D में हो सकती हैं या इससे भी अधिक आयामों में। आयामों को हम कहते हैं डायमेंशन। The branch of mathematics that studies patterns in shapes is called geometry। गणित की वह शाखा जो आकृतियों में पैटर्न का अध्ययन करती है उसे ज्योमेट्री कहा जाता है। शेप सीक्वेंसेस आर वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। आकृति अनुक्रम गणितज्ञों द्वारा अध्ययन किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रकार के आकृति पैटर्न होते हैं। टेबल 3 shows a few key shape sequences that are studied in mathematics। तालिका 3 में गणित में अध्ययन किए जाने वाले कुछ प्रमुख आकृति अनुक्रमों को दिखाया गया है। टेबल 3 एग्जाम्पल ऑफ शेप सीक्वेंसेस। रेगुलर पॉलीगन्स, तो दोस्तों ट्राइंगल है, जैसे ये भी एक पॉलीगन है। जिस पॉलीगन की 3 साइड्स होती हैं उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। 1, 2 एंड 3 इसकी 3 साइड्स हैं। जिसकी 4 साइड्स होती हैं 4, 1, 2, 3, 4, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। द नेक्स्ट जिसकी 5 साइड्स होती हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, उसे हम कहते हैं पेंटागन। नेक्स्ट जिसकी 6 साइड्स होती हैं उसे हम कहते हैं हेक्सागन। नेक्स्ट जिसकी 7 साइड्स होती हैं उसे हेप्टागन। जिसकी 8 साइड्स होती हैं उसे ऑक्टागन। जिसकी 9 साइड्स होती हैं उसे नोनागन। जिसकी 10 साइड्स होती हैं उसे हम कहते हैं डेकागन। कंप्लीट ग्राफ्स, जैसा कि आप देख सकते हो K2 ये एक लाइन है, K3 ट्राइंगल है, K4 स्क्वायर है, K5 पेंटागन है, K6 हेक्सागन है। स्टैक्ड स्क्वायर्स, ये भी आप देख सकते हो स्टैक्ड स्क्वायर्स, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25। द नेक्स्ट स्टैक्ड ट्राइंगल्स एंड नेक्स्ट कॉच स्नोफ्लेक। 1.6 रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। 1.6 संख्या क्रमों में संबंध। Often shape sequences are related to number sequences in surprising ways। Such relationships can be helpful in studying and understanding both the shape sequence and the related number sequence। अक्सर आकृति क्रम संख्या क्रमों से आश्चर्यजनक तरीकों से संबंधित होते हैं। ऐसे संबंधों को समझने और अध्ययन करने में सहायक हो सकते हैं जिससे दोनों क्रमों को समझना और आसान हो जाता है। Example, the number of sides in the shape sequence of regular polygons is given by counting numbers starting at 3, that is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is why these shapes are called respectively regular triangle, quadrilateral, that is square, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, etc. respectively। उदाहरण, रेगुलर पॉलीगन्स की आकृति क्रम में साइड्स की संख्या गिनने पर हमें काउंटिंग नंबर्स मिलते हैं जो 3 से शुरू होते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही कारण है
कि इन आकृतियों को क्रमशः रेगुलर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल जिसे कहा जाता है स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एक्सेट्रा कहा जाता है। The word regular refers to the fact that these shapes have equal length sides and also equal angles. That is, the side looks the same and the corners also look the same. We will discuss angles in more depth in the next chapter. रेगुलर शब्द इस तथ्य को दर्शाता है कि इन आकृतियों के किनारे समान लंबाई के होते हैं और एंगल भी समान होते हैं, अर्थात किनारे एक जैसे दिखते हैं और कोने भी एक जैसे दिखते हैं। हम अगले अध्याय में एंगल्स पर और गहराई से चर्चा करेंगे। The other shape sequences in table 3 also have beautiful relationships with number sequences. तालिका 3 में अन्य आकृति क्रम भी संख्या क्रमों के साथ सुंदर संबंध रखते हैं। Last summary. Mathematics may be viewed as the search for patterns and for the explanations as to why those patterns exist. गणित को पैटर्न की खोज और उन पैटर्नों के अस्तित्व के कारणों की व्याख्या के रूप में देखा जा सकता है। Among the most basic patterns that occur in mathematics are number sequences. गणित में होने वाले सबसे बुनियादी पैटर्नों में नंबर सीक्वेंसेस होते हैं। Some important examples of number sequences include the counting numbers, odd numbers, even numbers, square numbers, triangular numbers, cube numbers, विरानका numbers and powers of 2. संख्या क्रमों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों में गिनती की संख्याएं, ऑड संख्याएं, इवन संख्याएं, वर्ग संख्याएं, त्रिकोणीय संख्याएं, धन संख्याएं, वीरहंका संख्याएं और 2 की पावर शामिल है। Sometimes number sequences can be related to each other in beautiful and remarkable ways. For example, adding up the sequence of odd numbers starting with 1 gives square numbers. कभी-कभी संख्या क्रम एक दूसरे से सुंदर और उल्लेखनीय तरीकों से संबंधित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक से शुरू होने वाले ऑड संख्याओं के क्रम को जोड़ने पर इवन संख्याएं प्राप्त होती हैं। Visualizing number sequences using pictures can help to understand sequences and the relationships between them. चित्रों का उपयोग करके संख्या क्रमों की कल्पना करना क्रमों और उनके बीच के संबंधों को समझने में सहायक हो सकता है। Shape sequences are another basic type of pattern in mathematics. Some important examples of shape sequences include regular polygons, complete graphs, stacked triangles and squares, and Cauchy snowflake iterations. Shape sequences also exhibit many interesting relationships with number sequences. आकृति क्रमों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों में रेगुलर पॉलीगन, संपूर्ण ग्राफ, स्टैक्ड त्रिकोण और वर्ग, और कोच स्नोफ्लेक्स पुनरावृत्तियां शामिल हैं। आकृति क्रम भी संख्या क्रमों के साथ कई दिलचस्प संबंध दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स यहाँ कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स की एक डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में डालूंगा। अभी हम चैप्टर को पढ़ेंगे और हिंदी में समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।